ویلکم بیک ناظرین آج جو ہے وہ آئی جی سندھ رفعت مختار صاحب کی زیر صدارت جو ہے عام اجلاس ہوا ہے. اجلاس کے اندر پولیس افسران سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، جس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی واپسی کے اوپر جو ہے وہ کام کو تیزی کرنے کی ہدایت کی گئی، اور ساتھ ساتھ اسمگلنگ کے اوپر جو ہے اسی حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. اور اس پورے اجلاس کی جو اہم اجلاس بتایا جا رہا ہے اس میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں. ہمارے چیف کرائم رپورٹر ہیں اسد زیدی صاحب، وہ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں. جی اسد صاحب، اوور ٹو یو. یہ دیکھیے، آج ایک بہت اہم اجلاس جس کی جو ہے انعقاد کیا گیا، اور اس اجلاس کی جو صدارت ہے وہ رفعت مختار راجہ آئی جی سندھ کر رہے تھے. اس کے اندر جو ایجنڈا تھا، جو باتیں زیر غور لائی گئی اور جن پر تفصیلی طور پر جامع گفتگو کی گئی، اس میں سب سے اہم بات ہے غیر قانونی تاریک وطن کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں، عام انتخابات کے پرامن انعقاد اور سیکیورٹی کے حوالے سے جامع منصوبہ بندی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی اسمگلنگ مہم، آئندہ ہونے والے عام انتخابات پر مشتمل ایجنڈا، اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو کچھ جو چیزیں ہیں وہ زیر بحث لائی گئیں. اور پھر بعد ازاں اس میں مزید بریفنگ بھی دی گئی، جس میں سب سے اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی ہم نے گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھا کہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور غیر قانونی تاریک وطن کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور ان کو پھر باقاعدہ طور پر ان کے جو قواعد تھے وہ اکٹھے کیے گئے، جس کے اندر سب سے اہم چیز تھی کہ شناختی کارڈ کا ہونا، شناختی کارڈ کا نہ ہونا. اس کے بعد فیملی ٹری، اور پھر فیملی ٹری کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تین دہائیوں سے جو لوگ یہاں رہ رہے تھے ان کو بھی واپس بھیجنے کا عمل کیا گیا. اس میں ایک چیز جو زیر غور لائی گئی وہ یہ تھی کہ کس انداز سے یا کس طریقے سے جو ہے ان کو فیملیز کو رجسٹرڈ کیا گیا، یا کسی بھی شخص کا جو ہے شناختی کارڈ بنایا گیا جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم تھا، اور پھر ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی بات کی گئی جو اس سب میں جو ہے ملوث تھے. اچھا اسد ایک اور بات بھی بتائیے گا اسد زیدی، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں یہ بات کی جا رہی ہے تارکین وطن کی غیر قانونی طور پہ مقیم، ادھر اسمگلنگ کے معاملات کو بھی جوڑا جاتا ہے، تو اس کا آپس میں کیا نیکسس ہے؟ تھوڑی تفصیلات، کچھ فیکٹس بھی بتا سکیں. جی دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ مقیم لوگ، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر غیر قانونی ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر جس ملک سے ان کا واسطہ ہے، جہاں کے وہ شہری ہیں، وہاں پر وہ قانونی ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے پاکستان کے اندر مختلف جو ذرائع استعمال کر کے اسمگلنگ کرتے ہیں، جس کے اندر زیادہ تر زمینی ذریعے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے مختلف چیزیں جس کے اندر غیر قانونی طور پہ گاڑیوں کا آنا، اسلحے کا آنا، اور پھر اسی طریقے سے پاکستان سے چھینی گئی گاڑیوں کا جانا، اور اسلحے کا پھر بے دریغ استعمال، اور پھر سب سے اہم جو منشیات ہے وہ بڑی تعداد میں پاکستان میں آ کر اور پھر مختلف شہروں میں اس کا بڑھ جانا، یہ اس کے اندر قابل ذکر چیزیں ہیں. اور اس کے اندر پہلے سے کہا جاتا رہا کہ دیکھیے اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ چیزیں جن کے پاکستان کے اندر ٹیکسز جن پہ لگائے گئے ان چیزوں کے اوپر ٹیکسز وصول کرنے کے بجائے وہ غیر قانونی طور پہ جب پاکستان میں آتی ہے تو ایک بہت بڑا ذرائع مبادلہ کا جو ہے وہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیکسس کام کر رہا ہے، جو ان کے سہولت کار ہے جن پہ ہم بھی بات کرتے تھے، اور آج پھر بات کی جا رہی تھی کہ سہولت کاروں کو پکڑنے کی کوشش کی جائے، اور جتنے بھی اس میں گروہ ملوث ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جب اسمگلنگ کر کے چیزیں یہاں لاتے تھے اس میں روزمرہ کی چیزیں بھی شامل ہیں، یا پھر یہاں سے جو بڑی تعداد میں ڈکیتی، چوری اور وارداتیں کر کے جو ہے وہ جب بھاگ جاتے تھے وہاں پر، تو وہ بھی قابل ذکر چیزیں تھی. اور پھر اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی عمدہ انداز سے کی جائے، اور کریک ڈاؤن اس انداز سے بھی کیا جائے کہ ان کے سرپرستوں کو بھی مضبوط شکنجے سے گھیرا جائے. اچھا اسد زیدی صاحب، کوئی فگر اگر دے سکیں کہ اب تک کتنے لوگوں کی واپسی جو ہے وہ ممکن بن سکی ہے، اور کیا معاملات ہیں اس کے اندر؟ کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ شکایت آ رہی تھی کہ کہیں کوئی اور مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد وضاحتیں آئیں کہ جی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو اس کے اوپر اگر کوئی فگر دے سکیں کہ اب تک کتنے لوگ جا چکے ہیں اور کتنوں کی ابھی جو ہے جانا باقی ہے. دیکھیے، جو سینٹرز بنائے گئے
वहां से तो एक बड़ी तादाद, देखिए आपने जब तादाद की बात की तो लाखों की तादाद में गैर कानूनी तारीख वतन पाकिस्तान में मौजूद है, और फिर खसूसन अगर कराची की बात कर ली जाए तो अभी जो फिगर्स आ रही है वो हजारों में आ रही है, जबकि जब ये फिगर कोट की जाती है तो लाखों में की जाती है कि 20 से 25 लाख या 30 लाख लोग जो है गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में जो है मौजूद है, लेकिन ये तादाद बढ़ भी सकती है। लेकिन जो वापसी हो रही है वो सैकड़ों की तादाद में हो रही है, और फिर वो उन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो वो अभी हजारों तक पहुंचे। देखिए जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं, जो जोनल डीआईजीज है उनकी ड्यूटीज लगाई गई थी कि जितने भी सेंटर्स बने हैं वहां पे गैर कानूनी तारीख वतन को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उनके लिए एहतमाम किया जाए हर सहूलत का, और फिर उनको इज्जत के साथ बाइज्जत तरीके से भेजा जाए उनके मुल्क के अंदर। लेकिन उससे पहले जो सेंटर्स बनाए गए हैं उस उधर ममानियत है कि आप जब तक वो खुद फिगर नहीं देंगे तो आप लोग नहीं उसके अंदर जा सकते। मीडिया को भी मना किया गया ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया या कोई भी ऐसी चीज सामने ना आए। देखिए जो लोग वापस जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ भी कारोबार करते थे और वहां के भी मुकीम थे, लेकिन यहाँ से वापस जाने में उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है। और बहुत सारी शिकायतें भी ऐसी मौसूल हुई कि जी हमारी तो फैमिली ट्री यहाँ की थी, हमारा तो ID कार्ड यहाँ का बना हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ये चीजें भी सामने आई कि जो फैमिली ट्री थी उसमें बेशतर जो है वो खुद साख्ता थी, और उसमें से बेशतर जो शनाख्ती कार्ड है वो भी खुद साख्ता थे या किसी की मिली भगत से बनाए गए थे, और फिर उनके ऊपर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन उन अफसरान के जिन्होंने ये बनाए थे उसमें से या तो बेशतर रिटायर हो चुके हैं या फिर कुछ की अमवात भी हो चुकी हैं, वो लोग नहीं है क्योंकि बस 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन उनके जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जब कोई प्रोवाइड करता है तो फिर उसकी वेरिफिकेशन का एक अमल है, और उसके बाद उनको इजाजत भी दी जा रही है कि आप रुक जाएं। देखिए हालिया दिनों में अभी आपने कपड़े की बहुत बड़ी स्मगलिंग के ऊपर देखा था कि हमारे सामने कार्रवाइयां देखने में मिली, और इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो हमने देखा कि सुराग बोर्ड पर कार्रवाइयां की गई, जिसके अंदर रेंजर्स और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के इदारे और फिर जो है वो मुख्तलिफ महकमों ने मिलकर ये कार्रवाइयां की जो उनके अच्छा पास सर, एक और सवाल ये उठता है कि देखें जी, कुछ लोग इसमें से करोड़पति थे, कुछ की यहाँ पे जायदादें थी, कुछ सामान था, वो अपने साथ ले जा नहीं सकते, कुछ हदूद जो है वो उसका तयन कर दिया गया है कि इतनी रकम इतनी। तो अब ये जो पीछे सामान माल है, इसकी हिकमत अमली क्या बनाई गई है, कुछ इसके हवाले से अगर आप बता सकें नाज़रीन तक। देखिए जो लोग अपने कवायद मुहैया कर चुके हैं और फिर जिन्होंने अपनी जो है टैक्स पेमेंट्स बता दी है सरकार को, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल एक छूट दे दी गई है कि जी आपने जो चीजें आप लोगों की कारोबार जाहिर सी बातें करते थे तो उनके लिए तो रिलैक्सेशन है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए जो स्मगलिंग शुदा माल की आने के बाद जो है उसको बेचकर अपना कारोबार यहाँ करते थे, तो ऐसे लोगों के पास तो उनकी इनकम के जराए भी अभी तक वो बताने से कासिर हैं। तो उनके लिए तो सरकार अब भी कह रही है कि जो लोग ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उन लोगों के खिलाफ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और हम देख भी रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ बहुत शुक्रिया सर, ज़्यादा तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन हम तफसीलात इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब देखें इसको तेज़ करने की बात हो रही है, साथ साथ जहाँ ये वाली बात हो रही है ना कि इतने लोग चले गए, इतने रहते हैं, वहाँ पर इस वक्त हम मज़ीद बात करना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक DGC PLC अहमद जुनैद साहब। बहुत शुक्रिया सर टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि देखें इतनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद थे गैर कानूनी तौर पर तारिकीन वतन। अब मामला ये आ रहा है कि ये सवाल हमने अपने रिपोर्टर से भी जानने की कोशिश की, हम आपसे भी करेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में सामान, जायदाद, रकम और ये चीज़ें हैं, इसका कानूनी तरीका क्या है कि वो वहाँ पर मुंतकिल उनको की जाएगी, और बहुत सारा जो गैर कानूनी तौर पे मामला, सामान और रकम और चीज़ें वो हैं, उसका क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा? जी थोड़ा सा ज़रा आप जो बात कर रहे थे उसमें बात आपकी डिस्टॉर्शन में आ रही थी, मुझे ज़रा थोड़ा सा दोबारा कहेंगे। मैं अहमद साहब ये जानना चाह रहा हूँ, देखें एक स्मूथ तरीके से ये सारा मामला हो रहा है। अब मामला ये है कि गैर कानूनी तौर पे जिन अगवानियों को अपने वतन वापस भेजा जा रहा है उनकी यहाँ पर जायदादें भी थी, उनका यहाँ पर कारोबार भी था, उनके बहुत सारे मामलात यहाँ पर थे माली तौर पे भी। अब चलें जी, जो कानूनी हैं वो भी, और जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर उनकी इमलाक थी, उनकी जायदादें थीं, उनके बताया जाता है बड़े जो ताजिर थे वो उनका जो सामान मुंतकिल या जब्त करने का सिलसिला, उसके ऊपर कुछ आपके पास फैक्ट फाइंडिंग है कि क्या तरीक़ेकार होगा? लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जो चीज़ गैर कानूनी तौर पे हटाई गई
किसी भी मुल्क में आप रहते हैं तो वहाँ के कानून और जो रेगुलेशन हैं उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे गैर कानूनी तारकिन वतन थे, उन्होंने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया, प्रॉपर्टीज भी खरीदी, दूसरे सामान भी खरीदे। अब जाहिर है उनको जितनी जल्दी हो उसको डिस्पोज ऑफ करके या फिर किसी रिश्तेदार को देके या फिर किसी जानने वाले को देकर जाना पड़ेगा। देखिए ये बातें तो उनको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब गैर कानूनी तरीके से उन्होंने इसको हथियाया था। आज जबकि ये काम पूरा हो गया है, इनको एक मोहलत भी दी गई कि इस मोहलत के अरसे में जो है वो अपना जो भी अब सिलसिला करना चाहते हैं वो करके निकल जाएं। तो इसके बाद फिर अगर उन्होंने इसको प्रजिस्ट किया और ये समझ लिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं लेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो एमएफओ की जन्नत में थे। आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर एक्शन ले रही है तो बिल्कुल सही रह रही है। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी खित्ते में आप गैर कानूनी तौर पर नहीं रह सकते। जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनका भी जो है वो नेक्स्ट फेज में पॉलिसी अपनी जगह पर आएगी। लेकिन देखिए बात यह है कि लाखों के हिसाब से अगर गैर कानूनी तारिकीन वतन पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी और नेशनलिटी से हो, तो आज हमारा ये फर्ज बनता था कि हम उनको एक मुनासिब वक्त देकर इंसानी हुकूक के तकाजे पूरे करते हुए उनको यहाँ से निकल जाने का कह देते। दूसरे मुल्कों में तो ये होता है कि बगैर किसी नोटिस के पकड़ा, बाहर निकाला और जो चीज़ें यहाँ रही वो वहाँ पर सरकार जब्त कर दी गई। लेकिन हमने ये काम नहीं किया। हमने इंसानी हमदर्दी के ऐन उसूलों के मुताबिक काम किया और उनको मुनासिब वक्त दिया। अब उस वक्त में उन्होंने ये कंप्लाइंस नहीं की और अपने बचत का इंतजाम नहीं किया, तो फिर इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया। थोड़ा सा ये भी बताइएगा अहमद चनाई साहब, आप तो यकीनी तौर पे बहुत सारे जो क्राइम सीन्स होते रहे माजी के अंदर, उसके अंदर बराह रास्त आपने आपकी एक पूरी की पूरे तजुर्बात होंगे। आज भी ना कराची शहर से मोबाइल छिनता है और मुख्तलिफ आईफोन जैसे होता है बता देता है लोकेशन, तो अफगानिस्तान में लोकेशन आ जाती है। तो सर देखें बात यह है कि ये सवाल भी फिर उठेगा ना कि ये कहाँ से जा रहे हैं, ये हवा से नहीं जा रहे, ये ज़मीन से नहीं जा रहे, ये कौन सा नेक्सस है, इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए कराची के अंदर या पाकिस्तान में किसी भी हिस्से से या किसी भी खित्ते से जो है वो मोबाइल फ़ोन स्नैच होता है या चोरी होता है तो उसकी आईमी जो है आईमी नंबर्स वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान के मुल्क से बाहर निकलते हैं, लट से वो अफगानिस्तान की टेरिटरी में आ गए या फिर अपना किसी और मुल्क की टेरिटरी में आ गए, अपना अफ्रीकन टेरिटरीज में आ गए, मिडिल ईस्ट टेरिटरीज में आ गए, तो वहाँ के जो सेल ऑपरेटर्स हैं उनकी सिम के ऊपर जो है ये फ़ोन चल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से चोरी किए हुए मोबाइल फ़ोन की एक बड़ी तादाद करीब तरीन अफगानिस्तान स्मगल होती है। वहाँ की मार्केटों में खुलेआम पाकिस्तानी मोबाइल बिकते हैं और मैं समझता हूँ कि वेरी राइटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी वो ट्रीटी होनी चाहिए, वो एक्सचेंज राइट। मतलब यहाँ से छिना हुआ मोबाइल यहाँ से सीपीएलसी बंद कर दे कोई मसला नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर फिर इसका मतलब मुनज़्ज़म गैंग है और वो यहाँ से चीज़ें वो कर रहा है, तो इसके ऊपर भी यकीनी तौर पे सर एक और बात भी बता दिएगा, क्योंकि जब ये मोबाइल फ़ोन छिनते हैं बिलखुसूस कोई ये एक ऐसी चीज़ है जिसका शायद कराची का हर दूसरा तीसरा शहरी जो है विक्टिम होगा और वो ये देखता होगा कि उसका मोबाइल फ़ोन छिन गया, उसके बाद मिलता नहीं है। तो सीपीएल से रिपोर्ट करने के मतलब होता होगा माजी में भी, तो सिर्फ वो लॉक कर देता है या इसके अलावा आप लोग फाइंडिंग के ऊपर भी काम करते हैं? देखिए दोनों चीज़ों पे काम होता है। वो तो एक सिम भी ब्लॉक हो जाती है, उसे मगर गैर कानूनी तरीके से खुल जाती है तो उसको ट्रैक भी कर दिया जाता है। बहुत सारे सिलसिले होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि मोबाइल फ़ोन रिकवर हो और हमारे जो है वो जो उसका सही मालिक है उस तक पहुँचे। तो ये एक मुश्तरका जद्दोजहद है जो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उसको मज़ीद एक्सपैंड के उस बेस को करें और अफगानिस्तान के साथ भी कोई ट्रीटी हो कि वहाँ भी चोरी किए हुए मोबाइल जो है वो काबिल इस्तेमाल ना हो सके। सर लास्ट कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे, क्योंकि आपने माजी में जराइम की जितनी वारदातें हुई हैं उसको रोकने के लिए काविशें आपकी हैं यकीनी तौर पे इस शहर के लिए। अब चूँकि माजी में भी रिपोर्ट्स आपके पास आती होंगी, अब आप देख रहे हैं कि ये वतन वापस जा रहे हैं, तो कितना फ़र्क आएगा एक एक्सपर्ट राय यानी कि मैं अगर लेना चाहूँ नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँ? देखिए मैं समझता हूँ कि क्राइम के रेट्स में 50% कमी आ सकती है। 50%? ये एक बहुत बड़ा वो है कि अगर तमाम गैर कानूनी कारीगर वतन को निकाल दें तो 50% से ज़्यादा क्राइम जो हैं वो इन्हीं के तवज्जुह से होते हैं और यही लोग करते हैं। तो आज हम बरमला ये कहते हैं कि
हमारी हुकूमत को जो है वो ये स्टेप जो लिया है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। न सिर्फ पाकिस्तान से जराइम का एटलीस्ट मिनिमम 50% खात्मा, और इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो एडिशनल रिसोर्सेज हम पे आ रहे थे उन गैर कानूनी तारिकीन वतन से, वो एडिशनल रिसोर्सेज भी जो है वो हमारे अपने लोगों के काम आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से और अपने मौक़िफ़ जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। बहुत बड़ा एक फ़िगर दिया है कि इस मामले के बाद जो है अपना 50% तक वारदातों में कमी आएगी। अब देखते हैं कि वाकई में हकीकत में ये मामला सामने आता है या नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।